Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Rajasthan Minister of State for Home Jawahar Singh Bedam visited Jaipur's Sawai Man Singh SMS Hospital following the tragic ICU fire that claimed 6 lives. He stated it seems like this happened due to a short circuit in the ICU. The rescue operation was carried out. Rajasthan CM has also come here. The fire broke out late Sunday night in the trauma center's neuro ICU, where 11 critically ill patients were admitted. Despite emergency efforts, 6 patients, 2 women and 4 men succumbed to the blaze, which spread rapidly and released the toxic gases. Chief Minister Bhajan Lal Sharma also visited the hospital and ordered a high-level investigation with a committee led by Medical Education Commissioner Iqbal Khan tasked to examine the cause, hospital response and future safety measures. सर, जिस तरह से मरीज यहाँ पर रो रहे हैं, अच्छा खासा वो भर्ती हुए थे और इस तरह से उनकी मौत हो गई, जिम्मेदार कौन है? देखिए, प्रथम दृष्टया ये लगा है कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से कोई आग लगी है और आग लगने के बाद जो मौजूद प्रशासन था उन्होंने तात्कालिक सूचना देकर के रेस्क्यू किया है और पता लगते ही माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं और पूरा प्रशासक अमला यहाँ मौजूद है SMS में। अभी मैं यही हूँ सारा करके अभी नहीं अभी 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 SMS से अभी बुलेटिन जारी होगा। आपसे कृपया करके हमको पहले उनका इलाज करा लेने चाहिए जो भी है, और जो चले गए हैं आप थोड़ी सी देर धैर्य रखिए। सारी चीज थोड़ा सा देर आप काम कर लेने दें। आपसे मानवीय दृष्टिकोण से आपसे मेरी प्रार्थना है। मैं यही हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ। मैं बच्चों के साथ और लोगों के साथ यहीं खड़ा हूँ। उनके सर मैं बात रहा हूँ, 20 मिनट पहले हमने डॉक्टर जी को बोल दिया था आग लगी थी ना सर, आग लगी थी तो हमने पहले ही बोल दिया था 20 मिनट पहले डॉक्टर जी को। सर, जिस तरह से मरीज यहाँ पर रो रहे हैं, अच्छा खासा वो भर्ती हुए थे और इस तरह से उनकी मौत हो गई, जिम्मेदार कौन है? देखिए, प्रथम दृष्टया BJP leader Dilip Ghosh, speaking from North 24 Parganas, launched a sharp attack on West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee over her visit to landslide-affected regions in North Bengal. He accused her of indulging in photo opportunities while ignoring the plight of those. आसमान से कितना हुआ, क्या हुआ, एक बड़ा सा डिमांड चार्ट दिल्ली को भेजेंगे और फिर आंदोलन चलेगा, सरकार पैसा नहीं दिया, दिल्ली पैसा नहीं दिया। यही उनकी ड्रामा चलती है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हर जगह आते हैं, फोटो खींचते हैं। Bihar BJP Chief Dilip Kumar Jaiswal confirmed that the party selection committee met for 2 consecutive days at the BJP office in Patna. The discussions focused on all sitting seats, with every committee member sharing suggestions. Jaiswal stated there was a unanimous agreement that candidates must be strong enough to win with a significant margin. The meeting, chaired by Union Minister Dharmendra Pradhan, included Deputy CM Samrat Chaudhary and Vijay Kumar Sinha along with the senior leaders. The committee reviewed MLA performance and discussed potential replacements. Emphasis was placed on youth and women candidates. Jaiswal reiterated NDA unity under Nitish Kumar's leadership, aiming for a decisive victory in the upcoming assembly elections. Final candidate decisions will follow soon. आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक लगातार दूसरे दिन चली और आज हम लोगों ने जितने भी सिटिंग सीट थे सभी सिटिंग सीट पर हम लोगों ने चर्चा पूरा कर लिया और हमारे प्रदेश चुनाव समिति के जितने भी सदस्य मौजूद थे सब लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया। बहुत ही विस्तृत तरीके से एक एक सीट पर जो हमारा सिटिंग सीट है उस पर चर्चा हुआ और प्रदेश चुनाव समिति के जो हमारे Delhi Chief Minister Rekha Gupta attended the Diwali Mela organized by the RWA AD block in Shalimar Bagh.
where she emphasized the rapid pace of development across the capital. Addressing the gathering, she stated, "Development work in Delhi is progressing continuously. We have to work with speed as there has been a backlog for many years. The assembly and constituency works are moving ahead, and today we can see progress that was once unimaginable." Her visit coincided with a series of civic initiatives in the area, including the launch of Rs 1.5 crore hotline maintenance van to ensure uninterrupted power supply during repairs. Gupta also laid the foundation stone for a yoga center and announced new infrastructure projects such as underground reservoirs, tube wells and booster pumps in Shalimar Bagh. She praised locally made products showcased at the Mela and reiterated her commitment to transforming Delhi into a model city through sustained development efforts. मुझे अपने इस परिवार के बीच में आकर के प्रवीण जी बड़े अच्छे से ब्लॉक के सारे काम संभाल रहे हैं, नरेश जैन जी पूरे मंडल के काम बढ़िया से संभाल रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा है, आप सब अपने अपने काम में लगे हो, इसलिए मैं पूरी दिल्ली के काम कर पा रही हूँ। तो दिल्ली के काम होते रहें, हमारी विधानसभा के काम होते रहें, मंडल के काम होते रहें और एडी ब्लॉक के भी होते रहें। तो ये सारे काम हमें इकट्ठे चलाने हैं और स्पीड में चलाने हैं। बहुत सालों का बैकलॉग है, ढेर सारे काम करने हैं, पर आप देख रहे हो कि लगातार विकास के काम हो रहे हैं। जो चीजें वर्षों तक किसी ने सोची नहीं थी, आज उसे होता हुआ देख करके अच्छा लगता है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब ऐसी ब्लॉक पे आपके सामने वो कूड़े का ढेर बन गया था, वहाँ पे टाइलें लग के पार्किंग बन गई है। सिंगलपुर गांव से निकलते थे तो नैरो सी जगह थी, वो वाइडन कर दी गई है। हर ब्लॉक में नाली, सड़क, पानी की लाइन, सीवर की लाइन, पार्क, झूले, लाइट, सारे काम। और यहाँ तक कि बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे कम्युनिटी हॉल हैदरपुर में, स्कूल बड़ा शालामार गांव में, ऐसे ऐसे सारे प्रोजेक्ट के काम भी हमने शुरू किए। नहर के ऊपर जो एलिवेटेड रोड बनानी है उसका भी काम, जो एस्टिमेट बनाने का, डीपीआर बनाने का, वो सब भी काम शुरू हुआ है, जो कि एक बहुत ही लैंडमार्क काम हमारे शालीमार बाग के साथ होगा जब नहर के ऊपर एलिवेटेड रोड बनेगी और इस पूरी नहर पे बढ़िया सुंदर दोनों तरफ सड़क, रिवर फ्रंट, एक अपने आप में बहुत बड़ा। मुझे Union Minister Giriraj Singh strongly defended the Election Commission's special intensive revision of electoral rolls in Bihar, calling the EC an impartial institution that deserves public respect. Speaking in Patna, Singh accused opposition leaders Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi of attempting to mislead the public and create confusion around the SIR exercise, which aims to weed out ineligible voters and ensure accurate electoral rolls. He emphasized that the EC is simply fulfilling its constitutional duty by verifying citizenship and document authenticity. Singh questioned the opposition's motives, suggesting their concern lies more with the foreign nationals like Rohingyas and Bangladeshis than with Indian voters. He urged that action be taken against those spreading misinformation, asserting that only Indian citizens have the right to vote and that the EC's efforts are in the national interest. चोर चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने पूरे जिंदगी लूटपाट किया है वही आज बोल रहे हैं। लालू यादव की सरकार अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। भारतीय जनता पार्टी और ये इलेक्शन कमीशन को लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको मानना चाहिए। हमने केजे राव को भी माना है, टीएन शेषन को भी माना है, अब भी मान रहे हैं। ये एसआईआर पर लोगों को भ्रम फैलाया, इन पर तो मुकदमा क्यों नहीं चला रही है अभी तक? इन पर मुकदमा चलना चाहिए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी।
At the BJP's extended district executive meeting in Chittorgarh, Rajasthan, BJP President Madan Rathore addressed party workers as the chief guest, emphasizing the efficiency and experience of the current BJP-led government is one of yogis, not pretenders. Remarks reflect the BJP's broader narrative of spiritual leadership combined with developmental governance, aligning with the party's long-term goals for national progress and regional transformation. सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय सच में राजनीति का ये स्वर्णिम युग है, ऐसा युग आने वाला नहीं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। ये योगियों की सरकार है, ढोंगियों की और भोंगियों की नहीं। इसमें बिल्कुल न्यायपूर्ण काम हो रहा है और सबकी न्याय और विकास, सुरक्षा और विकास बहुत आवश्यक है, वो दिया जा रहा है। आज देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa voiced deep sorrow over the reported deaths of children allegedly linked to contaminated cough syrup in various states, calling the incident extremely saddening. Sirsa stated, "I express deep sorrow. The loss of any child's life is tragic for all of us." His remarks reflect growing concern over pharmaceutical safety and the urgent need for stricter regulatory oversight. The tragic reports have sparked nationwide calls for accountability and thorough investigation into the manufacturing and distribution of pediatric medicines. Sirsa's statement underscores the emotional and public health impact of such incidents, urging authorities to ensure that no family suffers such a devastating loss again. में कई राज्यों में कफ सिरप से जो है कई मासूम बच्चों की जानें जा चुकी हैं। बड़ा दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। मेरे को इसकी बहुत जानकारी तो नहीं, आप बता रहे हैं कि हाँ उसके पीछे कारण था, ये तो मैं जानता नहीं हूँ, पर मैं इसके लिए बहुत दुख व्यक्त करता हूँ और बड़ा खेद है कि ऐसा किसी भी मासूम की जान जाना हम सब के लिए बड़े दुख का कारण है। सर, साथ ही में देश भर में कई राज्यों में कफ सिरप से जो है कई मासूम बच्चों की जानें जा चुकी हैं। बड़ा दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। मेरे को इसकी बहुत जानकारी तो नहीं, आप बता रहे हैं कि हाँ उसके पीछे कारण था, ये तो मैं जानता नहीं हूँ, पर मैं इसके लिए बहुत दुख व्यक्त करता हूँ और बड़ा खेद है कि ऐसा किसी भी मासूम की जान जाना। Mumbai Congress President Varsha Gaikwad addressed the media at the Congress North Indian Regional Conference, reaffirming the party's inclusive ethos. She stated Mumbai is a city that embraces everyone, and similarly Congress welcomes and stands with all. Responding to recent defections, Gaikwad remarked that such exits are not uncommon in a state dominated by two major parties. She added, if some people leave the party, it happens because some are lured away out of fear or personal interest. Her comments reflect the party's stance on maintaining unity while acknowledging political challenges in Maharashtra's dynamic landscape. The conference aimed to strengthen outreach among North Indian communities and reinforce Congress' commitment to diversity and representation. उससे पूछा, मैं उसके ऊपर ये कहना चाहती हूँ कि मुंबई एक ऐसा शहर है, मैंने मेरे भाषण में भी कहा, अगर आपने सुना होगा तो, कि जो भी मुंबई में आया है मुंबई ने उसे अपनाया है, वो भी मुंबई का बन के रह गया है। तो मुंबई सबको अपनाती है, सबको प्यार देती है। उसी तरह से कांग्रेस भी सबको अपनाती है, सबको प्यार देने का काम करती है, सबका साथ देने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने, बिल्कुल आपके मत से मैं सहमत हूँ कि चाहे विरोधी पक्ष नेता मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे महापौर हो, चाहे मंत्री पद देने की बात हो, या चाहे मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष पद देने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही उत्तर भारतीयों को बहुत सारा प्रतिनिधित्व दिया है। आने वाले दिनों में भी मिलेगा प्रतिनिधित्व। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो ऐसा कोई नहीं कि उत्तर भारतीय चले गए, बहुत सारे लोग पार्टी में से चले जाते हैं। अब क्यों जाते हैं? क्योंकि एक नहीं दो पार्टियां महाराष्ट्र में टूटी, अभी भी कुछ लोग जो है वो लोगों को लेने का, इस पार्टी से उस पार्टी में लेने का काम कर रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं उसका भी मैंने जिक्र किया। कुछ लोग डर के लिए जा रहे हैं क्योंकि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का बड़ा सा एक जाल यहाँ बिछाया जा रहा है, और जो स्वायत्त यंत्रणा है उसका इस्तेमाल दबाने के लिए किया जा रहा है। एक ये भी कारण है। कुछ लोग स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं मुंबई महानगर पालिका का फंड के, अगर आप लोग थोड़ा पढ़ाई करके आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुंबई महानगर पालिका का फंड विरोधी पक्ष में जो रहता है उसको नहीं मिलता है। चाहे वो एमएलए रहे, चाहे वो सांसद चुन के आए, खासदार चुन के आए, उनको नहीं मिलता है।
लेकिन अगर आप किसी पार्टी के शाखा प्रमुख बन जाओगे तो आपको 2 करोड़ रुपए का फंड मिल जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग स्वार्थ के लिए चले गए, तो ऐसे जो गए हैं, मैं उनसे मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा, जो गए हैं वो गए हैं, लेकिन पार्टी के साथ जो वफादार से खड़े रहे वो पार्टी का कार्य है। At the Samman 2025 felicitation event in Delhi, RSS Sharkavya Dattatreya Hosbale emphasized the foundational values of Dharma, sacrifice and service as pillars of India's strength. He stated Dharma means helping others, sacrifice and service are the two ideals of this land. When we follow this path, India will be strengthened internally. Reflecting on the COVID-19 crisis, Hosbale lauded the resilience and compassion of ordinary citizens, noting that despite mass migrations, none were alone and there was no chaos or looting. He contrasted this with the global scenarios where food riots and military interventions occurred, highlighting India's unique social fabric and spiritual grounding. His remarks underscore the RSS vision of a united and morally driven nation. मित्रों, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित करना यही धर्म है, यही इस भूमि के, जैसे अभी मैंने शिवराज जी ने अपने देश की परंपरा के बारे में बताया, परोपकार करना। गाय दूध देती है परोपकार के लिए, पेड़ फल देता है, चाव देते हैं परोपकार के लिए, नदी बहती है परोपकार के लिए। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुग्धन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। यह शरीर भी तो मनुष्य के हैं, वो परोपकार के लिए ही है, ऐसे हमारे पूर्वजों ने कहा है। त्याग और सेवा भारत की इस मिट्टी के दो आदर्श हैं। स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने उद्घोष किया था। तो इसलिए भारत की भूमि की इस परंपरा को किसी न किसी रूप से हमें अपने अपने इच्छा से चयनित क्षेत्रों में करते रहना, यही भारत को अंदर से मजबूत करने के काम है, क्योंकि भारत की पहचान वही है। हमने मनुष्य के अंदर ईश्वर को देखा है। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं उस प्रभु का जिन्हें मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं, उनके मैं आराधना करता हूं, उनके मैं पुजारी हूं। अंदर ईश्वर को देखने का, इसलिए सेवा करने वाले हाथ वह प्रार्थना करने वाले हाथ से भी, मन से भी आगे हैं। इसलिए सेवा ही परमो धर्म, जो पुस्तक के शीर्षक में उन्होंने कहा है। तो इसलिए भारत के इस सेवा के भाव हमेशा जागरूक रहना चाहिए। लेकिन संकट के काल में लोग सेवा करते हैं। जब आपदा आती है, भूकंप होता है, बाढ़ आती है। Congress MP Jay Prakash welcomed the appointment of Bhupinder Singh Hooda as the Congress Legislature Party CLP leader and Narendra Singh as the Haryana Congress president, calling it a decision rooted in public sentiment. He stated that the decision is great and it has emerged from the voice of the people. The way Bhupinder Singh Hooda has been chosen is excellent. This is a fantastic decision and Bhupinder Hooda ji's leadership along with Narendra Singh has been accepted by the people of the state. His remarks signal strong internal support for the new leadership duo as the party gates up for upcoming political challenges in Haryana with renewed unity and direction. मान ने बहुत अच्छा फैसला किया है। ये प्रजातांत्रिक फैसला है, भाजपा की तरह थोपा हुआ नहीं है। जैसे भाजपा वाले मुख्यमंत्री भी पर्ची से निकालते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जिस तरीके से चुना है, मैं इसमें, और राव नरेंद्र जी को, मैं इसमें कांग्रेस हाईकमान का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का जो हमारे अध्यक्ष हैं, और सोनिया जी तो है ही हमारी मुखिया, प्रियंका जी भी हरियाणा के साथ बड़ा वो रखते हैं। तो बहुत अच्छा फैसला लिया है
और ये स्वागत योग्य नहीं है, स्वागत हो रहा है। और ये स्वागत होने की वजह से ही रात रात में आप लोगों ने देखा होगा, फैसले का मी की बात तो बटेऊ बता दे कहाँ कितनी बारिश हुई है। जब मेहमान आता है वही बता देता है। फैसले के लिए तो विरोधी पार्टियां जो हैं, जो वोट काटू के नाम से जानी जाती हैं, रातों रात जो उनकी दुकान बंद हुई तो किसी की भी कोई नहीं हुई। बीजेपी को सामसा सुन गया तो फैसला बढ़िया हुआ और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नेतृत्व प्रदेश के लोगों ने स्वीकार कर लिया। हमारे बहुत बढ़िया साथी हैं राव नरेंद्र सिंह जी, उनकी अध्यक्षता लोगों ने स्वीकार कर ली। तो इससे बड़ी और क्या फैसला होगा। हमारे ने बहुत अच्छा फैसला किया है। ये प्रजातांत्रिक फैसला है, भाजपा की तरह थोपा हुआ नहीं है जैसे भाजपा वाले मुख्य। That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.